Good morning, children. Chapter number 5, Location and Time. We have done many subtopics. Okay, the last video you understood about the time zone. Is it? Using the prime meridian or the Greenwich meridian, which is also known as a Greenwich mean time, how we have standardized the time for the whole world. Now today, moving ahead, in the continuation with this topic, we will see how the time has been standardized in India using the same concept. Okay. See children, here you can see the two pictures of the globe. This red line is known as the prime meridian. Is it? I think that is quite visible to you all. Okay. This red line is called the prime meridian, and in this picture you can see that the globe is rotating, and what is its direction? Its direction is from west to east. Okay, this already have explained in the last video, but let's revise certain basic concept of this standard timing, then we will move into the standard timing of the India. So this much I hope is clear to all of you. So the globe or the earth rotates from west to east, and that's why the time add up for the western side of the hemisphere and time reduced or get less or subtract when we move to the western part of the hemisphere. Okay. See, this concept you just keep in your mind that always the local time of any region or any place is decided when the sun is overhead. Okay, so agar India may be different region पे different place पे sun overhead होगा, so we consider that time as a local time. As per the local time there is a 12 noon. Now by keeping both this concept in the mind, the local time and the standard time, let's move toward the concept of the Indian Standard Time or the Standard Meridian of the India ahead. So children, this is a broader view of India on the earth. So its location is northeast on the earth, that is eastern hemisphere as per the prime meridian. See, this is a prime meridian. Okay, so this is an eastern part of the prime meridian, and this is here, it is equator. You can see this dotted line. Yeah, this is equator. So from the equator it is northern or the northern hemisphere. So India locates on earth at the northeastern hemisphere. Okay, now the standard meridian of the India lies here. Okay, somewhere here. See, इंडिया का जो स्टैंडर्ड मेरिडियन है वो यहाँ पे है. Okay, somewhere it is lies here. That will be clear in the next picture. Okay, so standard meridian of the India lies somewhere here along this red line. Wait. See, so it lies here. Okay, and it lies here, and its location is, as per the longitude, its location is 82.5 degree east. From the prime meridian, that is from here, it covers 5 time zone fully and the 7 longitude. Okay, so what does actually it means is, see, we know that earth is divided into the 24 zones and each zone has a 15 longitude, so it covers the 5 time zone, matlab 15 plus 15 30 45, then 60, and then it's 75, and then we have to add 7 longitude, then it's become 82 degree. So it's become 82 degree
82.5 डिग्री longitude है. Okay, so this is how 5 time zones, fully 5 time zones it covers, means from here, from the prime meridian को अगर हम देखें यहाँ से, अगर हम ये प्राइम मेरिडियन है तो यहाँ से लेके इंडिया का जो स्टैंडर्ड मेरिडियन है यहाँ तक का जो डिस्टेंस है एज पर द टाइम, वो कितना है? 5 टाइम जोन्स. कितने हैं टोटल? 5 टाइम जोन्स एंड हाफ मीन्स 7 लॉन्जिट्यूड. ओके, सो अगर हम इसको टाइम में मोर ब्रॉडली, मोर एक्सप्लेनेटरी मोड में देखेंगे तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर प्राइम मेरिडियन पे 12 नून है तो इंडिया की स्टैंडर्ड मेरिडियन पे मीन्स इंडिया में टाइम कितना होगा? लेट्स काउंट एंड डू इट. ओके, एक मेरिडियन अगर क्रॉस होता है तो कितना होता है? स्टार्ट फ्रॉम द हियर. ओके, सो 15 डिग्री मीन्स 1 टाइम जोन. तो 5 टाइम जोन हम आगे क्या काउंट करते हैं? मीन्स इफ इट इज 12 नून हियर एट द प्राइम मेरिडियन, अगर प्राइम मेरिडियन पे यहाँ पे 12 नून होगा तो स्टार्ट. ओके, 1 PM, 2 PM, 3 PM, 4 PM, 5 PM एंड हाफ मीन्स 30 मिनट. तो जब यहाँ पे 12 नून होगा तो इंडिया में कितना होगा बच्चों? इट्स 5:30 PM, दैट इज इन द इवनिंग. क्लियर? अब हम थोड़ा ये पूरा इंडिया का प्रॉपर लोकेशन ऑन द अर्थ देख लेते हैं. सो हियर इट इज द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द इंडिया, हियर इट इज द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द इंडिया. नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट में कौन सा स्टेट आता है? दिस इज गुजरात. ईस्टर्न मोस्ट पार्ट में कौन सा स्टेट आता है? अरुणाचल प्रदेश. तो यहाँ पे जो लॉन्जिट्यूड है starts from along with the border of the Gujarat, that is 68.7 degree east, and here at the most eastern side it is 97.25 degree. Okay, so ऐसे अगर हम उसको देखें तो it is covering 29.5 longitude, but हम उसको approx 30 longitude मान के चलते हैं. Okay, so as per the longitude, अगर हम लॉन्जिट्यूड के हिसाब से देखें तो इंडिया को कितना लॉन्जिट्यूड्स कवर करते हैं? 30 लॉन्जिट्यूड्स आर कवरिंग द होल पार्ट ऑफ द इंडिया. ओके, इंडिया को कितना लॉन्जिट्यूड कवर करता है? 30. तो इस 30 में से हमने एक मिडल सिलेक्ट कर लिया है, एक मिडल पार्ट सिलेक्ट कर लिया है, एंड दैट इज 82.5 डिग्री. ओके, एंड दैट वी हैव टेकन एज अ स्टैंडर्ड मेरिडियन टू डिसाइड द टाइम इन इंडिया. ओके, सो 15 + 15 30 होता है, तो उसमें से हमने एक मिडल ले लिया है, दैट इज 82.5 डिग्री ईस्ट. दैट इज अ स्टैंडर्ड मेरिडियन फॉर इंडिया. ऐसे ही दूसरे कंट्रीज भी अपना स्टैंडर्ड मेरिडियन डिसाइड करते हैं. ऑल कंट्री हैज देयर ओन स्टैंडर्ड मेरिडियंस, बट इफ यू विल सी रशिया इज अ वेरी बिग कंट्री, सो इट्स हैविंग एन 11 टाइम जोन. तो उसके इट्स हैविंग एक्चुअली द 11 स्टैंडर्ड मेरिडियन, बिकॉज वो बहुत बड़ा कंट्री है. सो 1 स्टैंडर्ड मेरिडियन से काम नहीं चलेगा. इवन चाइना हैज अ 1 स्टैंडर्ड मेरिडियन. ओके, नाउ लेट्स सी, हम इसको थोड़ा सा और वाइडर रेंज में देखते हैं कि स्टैंडर्ड मेरिडियन से कैसे टाइम डिसाइड होता है. ओके, see children, this is a green meridian. Okay, Greenwich meridian, and this is India. Okay, I think let me show it more concisely here and here. See children, longitudes which are covering the part of India, land of India, starts from the 68.7
7 degree to the 98.30 degree. So there are 30 longitudes covering the India. टोटल कितने longitudes है जो इंडिया को कवर करते हैं? 30. Okay. So see, I am showing you through the example. See, suppose if this part, okay, suppose if this part of the India is the most eastern side and this part of the India is the most western side, means here it is Arunachal Pradesh. You can see this part of the India here, this is Arunachal Pradesh, and the western part here it is Gujarat. Okay, क्योंकि मैंने अभी आपको समझाया कि जैसे ही 15 मेरिडियन क्रॉस होता है, जैसे ही 15 लॉन्जिट्यूड क्रॉस होता है, सो इट कवर्स 1 आवर. सो 30 मेरिडियंस हैं. तो अगर अरुणाचल प्रदेश में सुबह के 5 AM हो रहा होगा, सुबह के 5 बजे होंगे, तो 30 मेरिडियंस क्रॉस करेंगे तो गुजरात आएगा, मीन्स 2 आवर. इज इट? तो अगर अरुणाचल प्रदेश में सनराइज 5 AM में हो रहा होगा, तो एट द सेम टाइम मतलब कि गुजरात में कब होगा? मॉर्निंग एट 7 AM, बिकॉज इट टेक्स 2 आवर टू गेट द सनलाइट ओवर हियर. 2 घंटे बाद सनलाइट यहाँ पे पहुंचेगा. सो व्हेन इट इज अ 5 AM हियर, इट इज अ 7 AM हियर. ओके, दिस मच इज क्लियर टू यू. इतना कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आ रहा है? ओके, लेट्स मूव अहेड. See, now this is more clear. Here it is 68 degree east. Here it is 98 degree east. क्योंकि इंडिया जो है वो पूरे जो ग्लोब पे आप देखोगे अगर, तो वो पूरा का पूरा कौन से हेमिस्फीयर में है? It is all in the eastern hemisphere. Is it? Now, अभी आप देखो कि टोटल जो ये लॉन्जिट्यूड है, दिस इज 1 2, ये जितने भी, बिकॉज यहाँ तो देर इज ऑल द लॉन्जिट्यूड्स आर नॉट ड्रॉन ऑन दिस मैप, सो देर आर 30. सो वी हैव टेकन दिस लाइन, दिस इज 82.5 degree. Okay, this is an standard meridian decided to standardize the time in the context of India. जैसे वर्ल्ड में टाइम स्टैंडर्डाइज होता है, वैसे ही कंट्री में भी टाइम स्टैंडर्डाइज होता है. उसके लिए भी एक स्टैंडर्ड मेरिडियन चूज करना पड़ता है. तो देयर आर 30 मेरिडियंस. तो हमने उसमें से बीच वाला जो मेरिडियन है, जो 15 बीच में आता है, एंड दैट इज 82.5 डिग्री. सो दिस इज एन स्टैंडर्ड मेरिडियन फॉर इंडिया. स्टैंडर्ड मेरिडियन किसको बोलते हैं बच्चों? जितने भी मेरिडियन हो उसमें से कोई एक बीच वाला लॉन्जिट्यूड, उस प्लेस का जो पूरे इंडिया में से जो बीच का प्लेस लोकेट होता हो, जहाँ पे ये 30 डिग्री से हम कोई मिडिल लॉन्जिट्यूड सिलेक्ट कर लेते हैं, दैट इज कॉल्ड द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ द कंट्री और द प्लेस. तो हम लोगों ने वो कौन सा मेरिडियन सिलेक्ट किया है? दैट इज 82.5 डिग्री. दिस पर्पल लाइन के बाजू में ये जो आप डॉटेड लाइन देख रहे हो, दैट इज एन 82.5 डिग्री लॉन्जिट्यूड विच इज द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया. इसका मतलब क्या है? टाइम कैसे डिसाइड होगा? मतलब कि अगर यहाँ पे 5 AM है मॉर्निंग का, तो पूरे इंडिया में इट इज कंसिडर्ड एज अ 5 AM. ठीक है. अगर यहाँ पे 12 बज गए नून के, मीन्स द ऑल ओवर इंडिया इट इज 12 noon. This is how the time has been standardized for all the country. इंडिया तो हमारा इतना बड़ा नहीं है. फॉर एग्जाम्पल द कंट्री लाइक रशिया can't have a one standard time. तो उनके यहाँ पे 2 स्टैंडर्ड टाइमिंग्स है, 3 स्टैंडर्ड टाइमिंग्स है. ऐसे बहुत सारी कंट्री हैं, जैसे कि चाइना इज ऑल्सो अ वेरी बिग कंट्री, तो वहाँ पे 2 स्टैंडर्ड टाइमिंग्स है. रशिया इज हैविंग अ 3 स्टैंडर्ड टाइम जोन. ओके, बट इंडिया इतना बड़ा नहीं है, सो इट्स हैविंग ओनली 1 स्टैंडर्ड मेरिडियन. नाउ आई थिंक द कॉन्सेप्ट इज मोर क्लियरर टू यू. अब कंट्री के भी कॉन्टेक्स्ट में क्यों स्टैंडर्ड मेरिडियन डिसाइड करने की जरूरत पड़ती है? बिकॉज सपोज इफ समवन इज लिविंग हियर इन द मोस्ट ईस्टर्न पार्ट, ओके, कोई अगर इंडिया में यहाँ रह रहा है नॉर्थ ईस्ट साइड में, एंड समवन इज लिविंग हियर इन द गुजरात,
मीन्स अगर कोई अरुणाचल प्रदेश में रह रहा है, कोई दूसरा आदमी गुजरात में रह रहा है, ओके, सो गवर्नमेंट इज सेम एवरीवेयर, इंडियन गवर्नमेंट इज सेम। तो सपोज यहाँ का जो आदमी है उसको शाम को 5 बजे वर्क फिनिश करके देना है। इट हैज बीन ऑर्डर फ्रॉम द दिल्ली कि पूरे स्टेट को, जितने भी इंडिया में स्टेट हैं, उन लोगों को एक टास्क दिया गया है, दे हैव टू कंप्लीट एंड सबमिट एट द 5 PM इन द इवनिंग। तो अगर टाइम स्टैंडर्डाइज नहीं होगा तो क्या होगा? अरुणाचल प्रदेश में पहले 5 बजेगा, गुजरात में बहुत लेट से 5 बजेगा, सो एवरीबडी इज हैविंग अ डिफरेंट टाइम, इज इट? तो काम एक साथ नहीं चलेगा। सो to make a common time for all the people living in the country, there is a need to standardize the time as per the country also. So every country has their own standard meridian and standardized time. So in this picture you can see the important latitude which is crossing India. You already know this. This is Tropic of Cancer. Okay, this help us to decide about the temperature, climate. Okay, now here it is standard meridian of India. Okay, ये रेड लाइन के बाजू में जो आप डॉटेड लाइन देख रहे हो, that is standard meridian of India. और इसका लोकेशन क्या है? दैट इज 82.5 डिग्री ईस्ट. ओके, दिस इज द स्टैंडर्ड मेरिडियन. हियर इट इज 82.5 डिग्री ईस्ट. अभी दिस इज अ मैप ऑफ इंडिया इन द लार्जर प्रोस्पेक्ट. यू कैन सी हियर. सी बच्चों, ये जो मैंने रेड लाइन के बाजू में जो स्टैंडर्ड मेरिडियन है, दिस यू कैन सी कि वो डिफरेंट स्टेट ऑफ इंडिया से क्रॉस हो रहा है. इज इट? डिफरेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया से क्रॉस हो रहा है. इट इज passing through a very important and the ancient city of India, that is in Allahabad, that is in the state Uttar Pradesh. But this standard meridian is not only the standard meridian for the India, but it is also the standard meridian for the Sri Lanka, which is the neighboring country of India in the southern part. Here, see, I marked with the red color. This is Sri Lanka. तो इंडिया का जो स्टैंडर्ड मेरिडियन है, सेम स्टैंडर्ड मेरिडियन is also taken by the Sri Lanka. तो जो standardized time इंडिया का है, that same standard time is followed by the Sri Lanka also. Now the task here for you all people is to find out the various states in India from where this standard meridian crosses. आपको क्या करना है? वो सारे स्टेट्स के स्टेट फाइंड करना है जहां से स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया क्रॉस करता है. आई होप दिस कॉन्सेप्ट ऑफ द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जोन इज क्लियर टू यू ऑल. फिर भी कोई क्वेरी होगी, देन यू कैन मैसेज मी एंड आस्क मी.